Good morning students. So today is the last class of this unit and हम last exercise आज start करेंगे, that is 13.3. First few question में हम expanded form करेंगे and in the last few questions we will be doing standard form. इन दोनों में expanded form आपने पहले भी किया होगा. Standard form है something new that you will be learning, very easy. Let's begin with the expanded form first. अब यहाँ पे we have a number in front of us, इसको हमें expanded form में लिखना है. How do we write it? This is 2,79,404. तो इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं? is equal to 2 के बाद कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5. So 5 zeros प्लस 7 इंटू कितने? 1 2 3 4. जितने भी प्लेसेस हैं उतने हम जीरो ऐड करते जाएंगे. प्लस द नेक्स्ट नंबर इज 9 इंटू कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3. दैट इज 1000. Next number is 4. Then there are two places. That means into 100 plus 0 into कितने place हैं यहाँ पे? 1 and 4 into यहाँ पे कुछ नहीं है तो we'll multiply by 1. Now we can write it as 2 lakh 70,000 9,000 plus 400 plus 0 plus 4. Anything multiplied by 0 is 0. Now when you add this, it comes as this number. Similarly, we will do it for this one. 2806196 can be written as 2 into 1 2 3 4 5 6 zeros. Plus next number is 8 into 5. Next number is 0 into 4. Plus next one is 6 into यहाँ पे 3 है. Plus 1 into plus 9 into 10 plus 6 into 1, and it can be written as this is 20 lakh 8 lakh. Anything multiplied by 0 is 0. 6,100 plus 90 प्लस 6. So ये इसको एक्सपैंड करके हमने लिख दिया. Similarly for this one, 2 into 1 and 4 zeros, 4 places में है ये. Then next is 0. Even if you miss this and you don't write this, that is also okay because anyway ये 0 ही है. Plus 6 into 10 plus 8 into 1. अब आप नोटिस करोगे जो यूनिट्स प्लेस में वो 1 से होता है, जो टेंस में है वो टेंस, जो 1000 प्लेस में होता है 1000, जो हंड्रेड्स में होता है हंड्रेड्स, 1000 में होता है तो 1000 and so on. Now question number 2 says find the number. यहाँ पे हमारे को मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्सपोनेंशियल terms में, and we'll multiply this and find out the answer. So this can be written as 8 into 10 to the power 4. मतलब 10 into 10 into 10 into 10 जब हम करते हैं तो it comes as यहाँ पे 4 zeros. जितना 10 का एक्सपोनेंट है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे. Anything multiplied by 0 is 0. 4
into 10 raised to the power 1, मतलब only 10. 4 tens are 40. Anything raised to the power 0 is 1. So this means plus 5 into 1. A raised to the power 0 is 1. ये हमारा rule of exponents है. Now let's write this is 80,000 plus 6,000, 0 leave 45. So this becomes 86,000 and there's a 0. If you want you can keep the 0 so that there is no confusion. 45. Similarly in the next question, this is 4 into 1 and 5 zeros plus 5 into 1 and 3 zeros plus 3 into 1 and 2 zeros plus 2 into 1. Anything raised to the power 0 is 0. This becomes 4,05,302. When you add this up, it comes as 4,05,302. In this question, it is 3 multiplied by 10 raised to the power 4, 1 and 4 zeros, plus 7 into 10 raised to the power 2, 2 zeros, plus 5 into 1. This becomes 30,000 plus 700 plus 5. So this is 30,705. Last question of part 2. 9 into 10 raised to the power 5, 1 and 5 zeros, 4 and 5. ये हो जाएगा 9,230. 9 lakh. 2 will come in hundreds place, 3 will come in tens place. Express in standard form. Standard form I told you is something new. Standard form में क्या करते हैं हम, जो भी नंबर है उसके एक नंबर बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10 रेज़ टू द पावर द एक्सपोनेंट्स जो इसकी पावर है. मैं आपको एक करके दिखाती हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आई सेड एक नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 7 के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा एंड वील पुट अ 0. अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 70 lakhs आएगा. हमारे पास सिर्फ 7 है, हमें इसका 70 lakhs बनाना है. तो व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10 lakhs. और यू कैन सिंपली काउंट द zeros here या नंबर ऑफ प्लेसेस here. 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस जाना है तो 6 नंबर ऑफ जीरोस अहेड ऑफ 1 होना चाहिए. एंड इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, 7.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग 70 lakhs. अब इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये नंबर है, हमें डेसिमल लगाना है एक यूनिट के बाद. दीज आर कॉमास, ओके, डोंट कंफ्यूज देम विद डेसिमल. एंड बाकी पूरा नंबर हम ऐसे ही लिखेंगे. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अ नंबर कि ये डेसिमल के बाद यही सेम वैल्यू रहे. व्हाट विल वी डू, वील काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5. वील पुट 5 zeros. Or this can be written as 90878 into 10 raised to the power 5. Similarly यहाँ ऑलरेडी एक डेसिमल है, कुछ इस डेसिमल का हमें नहीं करना है. वील जस्ट लेट इट बी एज इट इज, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद द 10 एंड इट्स एक्सपोनेंट तब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चाहिए होता है कि खाली एक नंबर डेसिमल के पहले रहे.
we'll write the number as it is. अब अगर हमें डेसिमल हटाना होता है तो what do we do? हम अगर इसको 39087.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा. ओके, तो कीप दिस इन माइंड एंड नाउ लेट्स डू दिस. यही सेम लाना है. ओके, कितने यहाँ पे यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 5. यहाँ पे नॉर्मली हम क्या कर रहे थे? 5 यूनिट्स हैं तो फिर हम 5 जीरोस लगा रहे थे, बट वी नो कि हमें एक डेसिमल चाहिए. तो व्हाट विल वी डू? हम एक जीरो कम लगाएंगे. दैट इज वील पुट ओनली 4. सो दिस कम्स एज 10 raised to the power 4. तो बाकी पूरा आसान है. इसमें बस ये ध्यान रखना है कुछ अगर एक नंबर है डेसिमल के बाद तो हम एक जीरो कम कर देंगे, अगर 2 हैं तो 2 कम कर देंगे. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं एंड वी हैव टू एक्सप्रेस द फिगर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. मतलब कि हम पॉइंट एक के बाद लगाएंगे एंड बाकी बचे हुए 10 raised to the power whatever exponent is required. तो यहाँ पे हमें बताया है द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज दिस. सो दैट्स अ वेरी बिग नंबर. इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इन आवर स्टैंडर्ड फॉर्म. इवन व्हेन यू स्टडी चैप्टर्स इन साइंस तो आप ऐसे लिखे हुए आपको बहुत ज़्यादा फिगर्स मिलेंगे. सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हम ऐसे क्यों लिखते हैं और कैसे लिख सकते हैं. ओके, तो हमें डेसिमल एक नंबर के बाद लगाना है एंड 84. वी विल मल्टीप्लाई इट विद जो जितने भी यहाँ पे 3 तक के यूनिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो वील पुट 8 zeros and it can also be written as 10 raised to the power 8. in these cases जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में दी है वो आप जरूर लिखेंगे. you will not forget. speed of light in vacuum is this much. okay, तो what do we do? हमें एक के बाद पॉइंट लगाना है. ठीक है, and we'll count the number of units. 1 2 3 4 5 6 7 8 and raised to the power 8. what is the unit? meter per second. इसमें हमें दिया है diameter of the earth. we will place the decimal here. write the other numbers like this. 0 नहीं लिखेंगे हम and we'll count the units till 1. 1 2 3 4 5 6 7. 10 raised to the power 7 या फिर you can write the whole thing. unit is meters and then write it again. diameter of the sun. diameter क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा है. सेंटर से जो पास होती हुई लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको बोलते हैं डायमीटर. नाउ दिस इज एक नंबर के बाद डेसिमल चाहिए एंड 4 जीरोस हम नहीं लिखते हैं. इनटू वील काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टाइम्स वील राइट 0 और it can be written as 10 raised to the power 9 meters. Galaxy, there are on an average these number of stars. That's a very big number and we will write it in the standard form now. 1.0 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 raised to the power 11. क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे स्टार्स की बात कर रहे हैं. द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी सो मेनी ईयर्स ओल्ड. ओके, हमें 1 के बाद डेसिमल लगाना है, 2 लिखना है, बाकी नंबर्स नहीं लिखने हैं. लेट्स काउंट द यूनिट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 raised to the power 10. what is the unit? years. So, the distance of sun from the center of the Milky Way galaxy is estimated to be this much. Can you see the number of zeros? Now we'll simplify and write this. Sun center of Milky Way galaxy जो हमारी गैलेक्सी है उससे इतना दूर पड़ता है.
ये एस्टिमेटेड डिस्टेंस है इन मीटर्स. सो लेट्स राइट, लेट्स काउंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 and 20. And raised to the power 20. Unit क्या है? Meters. The earth has this much cubic kilometer of sea water. कितना sea water है अर्थ में? हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे and then we'll count the units till 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubic kilometers. Next question है, population of India in March 2001 was this much. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1.027 और बाकी 10 रेज़ टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और यहाँ पे यूनिट क्या होगी? पॉपुलेशन है, सो इट इज जस्ट अ नंबर, देर आर नो यूनिट्स हियर. So students, with this we have completed our syllabus for the unit, and this exercise was very easy. बाकी चैप्टर में भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी. थैंक यू.